امام حسین نے اپنے بھائی عباس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مولا غازی عباس کی فضیلت بیان کروں گا، ان کی شجاع بیان کروں گا۔ صلوات پر محمد والے محمد پر مجھ چھوٹے سے طالب علم کی اوقاتی کیا ہے، بساطی کیا ہے کہ مولا غازی عباس کی فضیلت بیان کروں۔ اگر میں حوض کوثر سے اپنی زبان کو پاک کرنے کے بعد مولا غازی عباس کی فضیلت بیان کروں تو میں ان کی فضیلت کا حق بیان ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس باب الولا ہے، عباس زہرا کی تمنا ہے، عباس حیدر کی دعا ہے، عباس میدان کا غازی ہے، عباس میدان کا غازی ہے، عباس حسین کا بھروسہ ہے، عباس سکائے سکینہ ہے۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں جو معیار علی کا ہے وہی معیار عباس کا ہے، جو مرتبہ علی کا ہے وہی مرتبہ عباس کا ہے، جو رتبہ علی کا ہے وہی رتبہ عباس کا ہے، جو کمال علی کا ہے وہی کمال عباس کا ہے، جو کمال علی کا ہے وہی کمال عباس کا ہے، جو جمال علی کا ہے وہی جمال عباس کا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس دونوں میں فرق اتنا ہے، علی شیر خدا ہے، عباس شیر علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد والے یا علی۔ علی شیر خدا ہے، عباس شیر علی ہے۔ یہ جملے کا آگے بڑھاتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں بس فرق اتنا ہے، دونوں میں فرق بس اتنا ہے، علی محافظ نبوت ہے، عباس محافظ امامت ہے۔ نہیں جملوں کو اور آگے بڑھاتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بس اتنا ہے، دونوں میں فرق بس اتنا ہے، علی کل ایمان ہے، عباس کل وفا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی عباس کل وفا ہے۔ تاریخ میں دو منظر ملتے ہیں، دو منظر ملتے ہیں، دو میدان ملتے ہیں، دو علم دینے والے ملتے ہیں، دو علم لینے والے ملتے ہیں۔ خیبر، ایک میدان کا نام ہے خیبر، ایک میدان کا نام ہے کربلا۔ ایک میدان کا نام ہے کربلا، خیبر میں علم دینے والے کا نام ہے محمد، کربلا میں علم دینے والے کا نام ہے حسین، کربلا میں علم دینے والے کا نام ہے حسین، خیبر میں علم لینے والے کا نام ہے علی، کربلا میں علم لینے والے کا نام ہے عباس۔ جو شان و عالم دینے والے کی ہے وہی شان و عالم لینے والے کی ہے، جو شان و عالم لینے والے کی ہے وہی شان و عالم لینے والے کی ہے۔ دونوں میدانوں میں مجمع کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ کربلا کا مجمع اور تھا، خیبر کا مجمع اور، سبحان اللہ، خیبر کا مجمع اور تھا، کربلا کا مجمع اور۔ خیبر کا مجمع کیسا؟ خیبر کا مجمع ایسا جہاں پر نبی کو چھوڑنے والے بھی موجود تھے، جہاں پر نبی کے دماغ پر شک کرنے والے بھی موجود تھے۔ یہ جملوں میں پلٹ کر یہ کہہ دیا جائے، یہ جملوں میں پلٹ کر یہ کہہ دیا جائے جہاں پر مردوں کے لباس میں کچھ نامرد بھی موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دونوں میدانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کربلا کا مجمع اور تھا، خیبر کا مجمع اور، خیبر کا مجمع اور تھا، کربلا کا مجمع اور۔ کربلا کا مجمع کیسا؟ کربلا کا مجمع ایسا، امام حسین خود فرماتے ہیں جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا نبی کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کو ملے۔ خیبر کا مجمع اور تھا، کربلا کا مجمع اور۔ کربلا کا مجمع کیسا؟ کربلا کا مجمع ایسا جہاں پر حبیب ابن مظاہر جیسا بہادر بھی ہے، جہاں پر علی اکبر جیسا شجاع بھی ہے، جہاں پر انہوں محمد جیسے دو شیر بھی ہیں، جہاں پر انہوں محمد جیسے دو شیر بھی ہے۔ میں کہوں گا مولا کائنات، اے جناب امیر، اے جناب امیر، اے جناب غدیر، اے جناب غدیر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد والے۔ میں کہوں گا اے جناب امیر، اے جناب غدیر، اے آدم کو توبہ کا ہنر سکھانے والے، اے موسیٰ کا دریا ہاتھ پکڑ کر پار کرانے والے، اے ابراہیم پہ آپ کو گلزار کرنے والے، اے یونس کو مچھلی کے بت سے بچانے والے، اے یونس کو مچھلی کے بت سے بچانے والے، اے یعقوب کو آنکھوں کی روشنی بخشنے والے، اے یوسف کو کنویں سے نجات دلانے والے، یہ مولا کائنات، اے جناب امیر، میں آپ کے لال کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، آپ کے لال کی فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنے لال کی فضیلت سن کر بہت خوش ہوگے، آپ اپنے لال کی فضیلت سن کر بہت خوش ہوگے۔ اے جناب امیر، اے جناب امیر، اے جناب امیر،
पत्थरों के मजमे में हीरे का चमकना और है, हीरो के मजमे में हीरे का चमकना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, हीरो के मजमे में हीरे का चमकना और है। आज ये दुनिया मौला गाजी अब्बास के अलम पर फतवा लगा रही है, बिदअत बता रही है। इनको मालूम ही नहीं कि अलम का वजूद कब से है, क्योंकि तारीख इस्लाम में मिलता है जब कुरान का वजूद नहीं था तो अलम का वजूद था। क्या जुमला है, वाह, सुभान अल्लाह। जनाब आदम के दो बेटे, एक का नाम है हाबिल, एक का नाम है काबिल। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, हाबिल यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। जनाब आदम की नस्ल चली जनाब शीश से। जब जनाब आदम की नस्ल जनाब शीश से चली तो हाबिल और काबिल और जनाब शीश में हुई जंग। तो तारीख इस्लाम ने लिखा काबिल का लश्कर लेकर चला तलवारे खंजर नेज़े, और तारीख ने लिखा जनाब शीश का लश्कर लेकर चला अलम। तारीख ने लिखा जनाब शीश का लश्कर लेकर चला अलम। तो पता कैसे चले कौन सा लश्कर जालिम का है, कौन सा लश्कर मजलूम का है, कौन सा लश्कर कातिल का है, कौन सा लश्कर मकतूल का है, कौन सा लश्कर कातिल का है, कौन सा लश्कर मकतूल का है। तो जिसके हाथ में अलम था वो था मकतूल का लश्कर, जिसके हाथ में अलम था वो था मजलूम का लश्कर, जिसके हाथ में अलम नहीं था वो था कातिल का लश्कर, जिसके लश्कर के हाथ में अलम नहीं था वो था कातिल का लश्कर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सुभान अलम का वो था मजलूम का लश्कर। तो कानून यहीं से बन गया, कानून यहीं से बन गया। मजलूम के मानने वालों को अलम मिलता है, जालिमों के मानने वालों को अलम नहीं मिलता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व खैबर में अलम के पीछे भागे थे। वहां भी तो अलम की लड़ाई थी, किसके हाथ में अलम दिया जाएगा। शाही ने क्या खूब लिखा है कि बुज़दिल भी बहादुर का आशम मांग रहे थे, बुज़दिल भी बहादुर का आशम मांग रहे थे, बुज़दिल भी बहादुर का आशम मांग रहे थे। जाहिल भी मौलिम से कलम मांग रहे थे, कि जाहिल भी मौलिम से कलम मांग रहे थे। मालूम नहीं था जिन्हें इमला भी अलम का, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक पहलू मौला गाजी अब्बास की फजीलत है, तो एक पहलू जनाब मौला गाजी अब्बास की जंग का बयान करता हूँ। आपने मौला अली की बहुत सी जंगें पढ़ी होंगी, जवानी की बहुत सी जंगें पढ़ी होगी। मौला अली की एक ज़ईफ़ी की जंग है, जंग सिफ़ीन। तारीख ने लिखा कि जंग दो रिवायत है, ये जंग 7 महीने कुछ दिन चली, दूसरी रिवायत है ये जंग 9 महीने कुछ दिन चली। जब तमाम अली का लश्कर जख्मी हो चुका, घायल हो चुका, तो मौला अली के पास आता है। मौला अली के पास आने के बाद कहता है मौला जंग रोक दीजिए, इसलिए कि तमाम का तमाम लश्कर घायल हो चुका है, जख्मी हो चुका है। हमको मोहल्लत दो के हम अपने जख्मों पर मरहम लगा सके, हम अपनी टूटी हड्डियों को पट्टी बांध सके, हम अपनी टूटी हुई हड्डियों को पट्टी बांध सके। मौला अली ने कहा जंग नहीं रुकेगी। बाद में मालिक अस्कर आते हैं, मालिक अस्कर कहते हैं मौला अली जंग रोक दीजिए। मौला ने एक टीले पर चढ़कर कहा मालिक ये जंग नहीं रुकेगी, जंग होकर रहेगी। मालिक ने कहा मौला जब सारा लश्कर घायल है, सारा लश्कर जख्मी है, तो जंग कौन करेगा। मौला ने सीने पर हाथ मारा और कहा आज मेरा लाल जंग करेगा, मेरा लाल जंग करेगा। एक कोने से हसन उठे, हसन उठने के बाद कह रहा है मौला आका बाबा इजाजत दो। इमाम अली ने कहा बेटा बैठ जाओ।
दूसरे कोने से इमाम हुसैन उठे, कहा बाबा इजाजत दो। अली ने कहा बेटा बैठ जाओ। मौला हुसैन ने कहा बाबा आपने ही तो कहा है कि मेरे बेटे जंग करेगा, मेरा बेटा जंग करेगा। तो अली कहते हैं बेटा तुम मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे थे, बेटे हो गए हो, आज से मेरा बेटा जंग करेगा, मेरा बेटा अब्बास जंग करेगा। अली से कहा अब्बास को बुलाया जाए। अब्बास को बुलाया गया। जैसे अब्बास को बुलाया गया, अली ने अपने अमामों को उतारा, अब्बास के सर पर लगाया, अपनी नकाब उतारी, नकाब उतारने के बाद अब्बास के चेहरे पर लगाई और लगाने के बाद जंग पर रवाना किया। जंग पर रवाना किया। जैसे ही जंग पर रवाना किया, तमाम का तमाम लश्कर जो है अब्बास को अली समझ रहा था। तमाम का तमाम लश्कर अब्बास को अली समझ रहा था, अब्बास को अली समझ रहा था। अब जैसे ही मैदान में आए और अमीर शाम ने एक नामी पहलवान को बुलाया, जिसका नाम था इब्ने शूशा, जिसका नाम था इब्ने शूशा। और उसको बुलाने के बाद कहा जा इब्ने शूशा, अगर तू अली को कत्ल करके आएगा तो मैं तुझको इतने दिरहम इनाम दूंगा। तो इब्ने शूशा ने कहा ए अमीर शाम, तू मेरे दिरहम देकर तू मेरा दीन दिरहम बिरहम करना चाहता है? दिरहम देकर मेरा दीन दिरहम बिरहम करना चाहता है? मैं इसमें अली से मेरी पहले से ही दुश्मनी है, मैं बगैर दिरहम के अली को कत्ल करूंगा। अब जैसे ही इब्ने शूशा मैदान में आया और अमीर शाम ने कहा कि ए अमीर शाम, ए इब्ने शूशा जाओ अली से जंग करो। तो इब्ने शूशा कहा मुझे शर्म आती है अली से लड़ने में, मेरी तौहीन है। तो अमीर शाम ने कहा इब्ने शूशा, अली ने जो है लश्कर पर काबू किए हुए हैं, तमाम लश्कर पर हावी है, और तू कहता है जंग नहीं करागा, तेरी बेइज्जती है। तो इब्ने शूशा ने कहा मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा एक बेटा ही अली के लिए काफी है। तो अमीर शाम ने कहा ठीक है अपने बेटों को भेज। अमीर शाम ने कहा ठीक है अपने बेटों को भेज। अब इब्ने शूशा ने अपने पहले बेटे को भेजा, जंग में आया, अब्बास ने वार किया, उन 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। दूसरा बेटा वार किया, 2 टुकड़ों में हिस्सा हो गए। तीसरा बेटा आया, अब्बास ने वार किया, उसके भी 2 हिस्से हो गए। चौथा आया, अब्बास ने वार किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। तमाम का तमाम लश्कर घबराने लगा और कहने लगा वहारे अली तेरी शुजात, वहारे अली तेरी शुजात, वहारे अली तेरी शुजात। पहले को मारा वहारे अली तेरी शुजात, दूसरे को मारा वहारे अली तेरी शुजात, तीसरे को मारा वहारे अली तेरी शुजात, चौथे को मारा वहारे अली तेरी शुजात। बीच में उमरे आस था। उसने कहा ए लईनो, तुम अली की तरफ हो या अमीर शाम की तरफ हो? तुम अली की तरफ हो या अमीर शाम की तरफ हो? जो अली का नारा लगा रहे हो, जो अली का नारा लगा रहे हो। जब इब्ने शूशा के 4 बेटे कत्ल हो गए, जब इब्ने शूशा के 4 बेटे कत्ल हो चुके, तो इब्ने शूशा को जोश आया, गुस्सा आया, मैदान में झूमता हुआ आया और आने के बाद कहता है ए अली, बहुत ख्वाहिश थी, बहुत चाहत थी कि मैं तुमसे जंग करूं, कि मैं तुमसे जंग करूं, कि मैं तुमको मारूं। आज मुकाबला हो ही गया है। तो देखिएगा अहले बैत किसी को धोखे में नहीं रखते, अहले बैत किसी को धोखे में नहीं रखते। अब्बास ने इब्ने शूशा से मुखातब होकर कहा ए इब्ने शूशा, तू क्या समझ रहा है मैं अली हूं? नहीं। अब्बास ने चेहरे से नकाब उतारा और कहा देख मैं शेर अली हूँ, मैं शेर अली हूँ। तो इब्ने शूशा कहता है ठीक है, पहले अली के बेटों को कत्ल करूंगा, बाद में अली को कत्ल करूंगा। अब जैसे ही इब्ने शूशा ने वार किया, अब्बास वार को रोकते जाते हैं, दूसरा वार किया, अब्बास रोकते जाते हैं। जब तीसरा वार किया, अब्बास मुस्कुराते हुए रोकते जाते हैं। अब अब्बास के वार की बारी आई। अब्बास ने कहा ए इब्ने शूशा, तुझ में जितना जोश है, जितनी कुव्वत है, तू मेरे वार को रोक के दिखा, तू मेरे वार को रोक के दिखा। अब्बास ने वार किया, तमाम लश्कर को लगा के अब्बास का वार जो है खाली चला गया, बेकार चला गया। अब्बास ने जैसा ही वार किया, जैसा ही घोड़े ने हरकत की, क्या देखा इब्ने शूशा का आधा धड़ इधर है, आधा धड़ उधर है। इब्ने शूशा का आधा धड़ इधर है, आधा धड़ उधर है। इब्ने शूशा के 2 हिस्से हो गए। अमीर शाम ये मंजर देख रहा था
अमीर शाम से रहा ना गया, अमीर शाम से रहा ना गया। अमीर शाम खड़ा हुआ और कहने लगा वहरे अली तेरी शुजात, वहरे अली तेरी शुजात। पहले बेटे को मारा वहरे अली तेरी शुजात, दूसरे बेटे को मारे वहरे अली तेरी शुजात, तीसरे बेटे को मारा वहरे अली तेरी शुजात, चौथे बेटे को मारा वहरे अली तेरी शुजात, बाप को मारा वहरे अली तेरी शुजात। अली से रोका ना गया, अली घोड़े पर सवार हुए और मैदान में आए। आने के बाद अमीर शाम से मुखातब होते हैं और कहते हैं ए अमीर शाम, ये अली नहीं है, शेर अली है। ये अली नहीं है, शेर अली है। जैसे ही नकाब उतारा और कहा कि ये खानदान बनी हाशिम का जाला है, ये शमे ईमान अली उसका जाला है, ये लबे शब्बीर का बुरा हुआ तराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।